شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ میرے BA کے امتحانات ختم ہو چکے تھے، اب مجھے رزلٹ کا انتظار تھا۔ میرا چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عمران تھا۔ ایک دن امی نے ابو سے کہا کہ آسیہ نے خضرا کے لیے رشتہ بتایا ہے۔ آسیہ امی کی دوست تھی۔ امی نے کہا آسیہ نے بتایا ہے کہ لڑکا اکلوتا ہے، اس کا نام عاصم ہے۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی۔ عاصم کے والدین نے 2 سال پہلے اس کی شادی کر دی تھی۔ امی نے کہا عاصم پڑھا لکھا لڑکا ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہے۔ امی نے کہا مجھے تو رشتہ بہت پسند آیا ہے، میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہاں کر دوں۔ ابو نے کہا پہلے خضرا سے پوچھ لو، اس کے بعد میں لڑکے اور اس کے گھر والوں سے ملوں گا، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ پھر امی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے کہا امی مجھے آگے پڑھنا ہے۔ امی نے کہا شادی کے بعد جتنا دل چاہے پڑھ لینا۔ میں نے کہا اچھا، اگر عاصم کے گھر والوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت نہ دی تو؟ امی نے کہا میں آسیہ سے بات کرتی ہوں، وہ عاصم کی فیملی سے بات کرے گی۔ امی نے کہا اگر وہ لوگ مان گئے پھر تو تمہیں شادی کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے امی سے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ یہ سن کر امی خوش ہو گئیں۔ امی نے فوراً آسیہ آنٹی کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ شام کو آسیہ آنٹی کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ عاصم کی فیملی کو خضرا کی شادی کے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر امی ابو عاصم کی فیملی سے ملے اور انہیں عاصم اور اس کے ماں باپ بہت اچھے لگے اور اس طرح میرا رشتہ طے پا گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور میری شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی اور میں بیاہ کر عاصم کے گھر آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے کمرے کو بالکل سجایا نہیں گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد عاصم کمرے میں داخل ہوئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے بڑا دکھ ہو رہا ہوگا کمرہ دیکھ کر کیونکہ اسے سجایا نہیں گیا۔ پھر کہنے لگے مجھے سجاوٹ والی چیزیں پسند نہیں ہیں اور کہنے لگے جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، مجھے میک اپ اور جیولری سے وحشت ہوتی ہے۔ میں اٹھ کر واش روم میں گئی۔ واش روم میں آ کر میں رونے لگی کیونکہ مجھے رونا آ رہا تھا کہ جس انسان کے لیے میں اتنا تیار ہوئی اسے یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ یہ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا عاصم کمرے میں نہیں تھے۔ میں واش روم میں گئی۔ جب واپس آئی تو عاصم بیڈ پر بیٹھے تھے اور کہنے لگے مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے، کل سے تم بھی جلدی اٹھو گی اور مجھے میرا ناشتہ ٹائم پر چاہیے۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گئی، پہلے واش روم گئی، اس کے بعد کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا عاصم واش روم میں تھے، ابو سو رہے تھے اور میری ساس قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا میں ہی جا کر دیکھ لیتی ہوں دروازے پر کون ہے۔ میں گئی اور میں نے پوچھا کون ہے۔ آگے سے آواز آئی دودھ والا۔ میں نے آ کر کچن سے پتیلی اٹھائی اور دودھ لینے چلی گئی۔ دودھ والے نے مجھے دیکھ کر کہا آپ عاصم بھائی کی بیوی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا عاصم بھائی کی تو لاٹری لگ گئی، اتنی خوبصورت بیوی جو مل گئی۔ میں دودھ لے کر جب پیچھے مڑی تو میں ایک دم ڈر گئی کیونکہ سامنے عاصم کھڑے تھے۔ میں جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ناشتہ بنایا۔ میں ناشتہ اور چائے لے کر کمرے میں گئی تو عاصم بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے تمہیں بہت اچھا لگ رہا تھا غیر مرد کے منہ سے اپنی تعریف سن کر۔ میں نے کہا نہیں وہ تو۔ عاصم فوراً بول پڑے میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہنے لگے تم دودھ کیوں لینے گئی تھی؟ میں نے کہا آپ واش روم میں تھے، امی قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔
आसम ने कहा, वॉशरूम में था, मर तो नहीं गया था। 2 मिनट मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारा तो दूध वाले के साथ बात करने को दिल चाह रहा था, इसलिए तो भाग कर गई। अम्मी से भी नहीं कहा। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आसम ने मेरे बालों को जोर से पकड़ा और कहने लगे, आइंदा भूल कर भी दूध मत लेने जाना। मुझे इस कदर तकलीफ हो रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन आसम का मूड बहुत अच्छा था। मैंने डरते डरते कहा, आसिम, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आसिम ने कहा, क्यों? मैंने कहा, शादी से पहले आपकी अम्मी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद भी मैं पढ़ सकती हूँ। आसिम ने कहा, अम्मी से बात हुई थी, मुझसे नहीं। फिर आसिम कहने लगे, यूनिवर्सिटी में जाकर लड़कों से दोस्ती करोगी, फिर मुझे छोड़ दोगी, दूसरे के पास जाओगी, ये करना चाहती हो? मैंने कहा, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? आसम गुस्से में आ गए और कहने लगे कि चुपचाप घर संभालो, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मैं रोने लगी। अगले दिन मैंने आसम से कहा, मुझे अम्मी के घर जाना है। आसम कहने लगे, मेरी शिकायतें लगानी है? मैंने कहा, जी नहीं, मेरा अम्मी को मिलने को दिल कर रहा है। आसम ने कहा, शाम को चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ वापस भी लेकर आऊंगा। मैंने कहा, मुझे अम्मी के घर कुछ दिन रहना है। आसिम ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें वहां 1 घंटे के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, आसिम, वो मेरे माँ बाप का घर है। आसिम ने कहा, अगर ज्यादा जिद की तो हमेशा के लिए छोड़ आऊंगा। फिर वो मेरे साथ अम्मी के घर गए और रास्ते में कहने लगे कि अम्मी के घर जाकर तुमने उठकर कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही बैठी रहना। जब हम अम्मी के घर पहुंचे तो अम्मी हमें देखकर बहुत खुश हुई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी अम्मी को सब कुछ बता दूं, मगर मजबूर थी। फिर कुछ ही घंटों के बाद हम घर वापस आ गए। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी कि कोई इंसान इतना शकी कैसे हो सकता है। अगली सुबह जब आसिम ऑफिस चले गए, उनके जाने के कुछ ही घंटों के बाद अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब्बू उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जाने लगे तो अम्मी ने मुझे कहा, सब्जी वाले से बेटा सब्जी ले लेना। और मैंने कहा, जी। सब्जी वाला आया, मैं सब्जी लेने गई। मुझे देखकर कहने लगा, आप आसम भाई की बीवी हैं? मैंने कहा, जी। सब्जी वाला कहने लगा, आप पहली बार मुझसे सब्जी ले रही हैं, इसलिए मैं आपको सब्जी रायत दूंगा। मैं सब्जी लेकर घर में दाखिल हुई तो आसम खड़े थे। मैंने कहा, आप इतनी जल्दी आ गए? कहने लगे, फाइल भूल गया था, तुम्हें रंगे हाथों जो पकड़ना था। मैंने कहा, क्या मतलब? आसम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले जाकर बेड पर ऐसे फेंका जैसे इंसान कोई चीज़ फेंकता है। कहने लगे, ये सब कब से चल रहा है? सब्जी वाला तुम्हें रायत सब्जी क्यों दे रहा था? आसम कहने लगे, सब्जी वाला कह रहा था कि मैं सबको आलू 80 रुपये किलो देता हूँ, आपको 70 रुपये में दूंगा और दूसरी सब्जी भी कम कीमत पर दूंगा। और कहने लगे, सब्जी वाला तुम्हारा क्या लगता है? पहले दूध वाला और अब सब्जी वाला, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? आसम बहुत गुस्से में थे। मेरा तो उनके सामने मुंह ही नहीं खुल रहा था। मैं थर थर कांप रही थी कि न जाने अब क्या होगा। आसम ने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की जुर्रत नहीं होगी। मैंने हिम्मत करके कहा, आसिम मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा कभी सब्जी लेने नहीं जाऊंगी। आसम ने बेल्ट के साथ मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सास ससुर आ गए, उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आसम तो मुझे मार ही डालते। आसम कह रहे थे कि आइंदा सब्जी लेने नहीं जाओगी।
अम्मी ने आसम को खूब डांटा और कहा, तुम पागल हो गए हो। मैंने खिजरा से कहा था कि सब्जी ले लेना। आसम गुस्से से कमरे से बाहर चले गए और मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मैंने अपनी सास से कहा, ये शुरू से ही ऐसे थे। मेरी सास ने कहा, शक्की तो ये शुरू से ही था, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ नादिया नामी लड़की से इसकी दोस्ती हो गई। कुछ अरसे के बाद ये नादिया को दिलो जान से चाहने लगा और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन एक दिन आसिम यूनिवर्सिटी गया तो उसने देखा कि नादिया एक दूसरे लड़के के साथ बैठी है और वो लड़का नादिया को फूल और गिफ्ट दे रहा था। आसिम ने नादिया से कहा, ये कौन है? नादिया ने कहा, मेरा दोस्त। आसम गुस्से में आ गया। उसने नादिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर नादिया हंसने लगी और कहने लगी, कैसी मोहब्बत? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नादिया ने कहा, मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, तुम भी मेरे दोस्त हो और ये भी मेरा दोस्त है। नादिया ने कहा, मेरे और भी दोस्त हैं, क्या मैं सबसे शादी करती फिरूं? ये सुनकर आसम ने एक जोरदार थप्पड़ नादिया के मुंह पर मारा और कहा, तुम धोखेबाज हो। मेरी सास ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। आसम तो शादी करना ही नहीं चाहता था, वो तो मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि इसकी शादी कर दो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो और बिगड़ गया। फिर कुछ दिनों के बाद आसिम ने आकर कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे दूसरे शहर जाना है। उसने बताया कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। आसिम चले गए। अगले दिन मेरी सास की बहन का फ़ोन आया कि उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और वो मेरी सास से मिलना चाहती हैं क्योंकि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर मेरी सास रोने लगी। मेरी सास ने आसम को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं भी घर जल्द पहुंच जाऊंगा। उसने कहा, अम्मी अब्बू आप खाला को देखने चले जाएं। मेरे सास ससुर चले गए। रात होने को आई, ना तो आसम आए और ना ही मेरी सास ससुर। मैंने आसम को फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद जा रहा था। उस रात मौसम बहुत ख़राब हो गया था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। लग रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। फिर लाइट चली गई। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी अम्मी को कॉल करके सब कुछ बताया और कहा, आप भाई को मेरे पास भेज दें। कुछ देर के बाद मेरा भाई मेरे घर आ गया। लाइट भी आ गई थी। मैंने भाई के लिए चाय बनाई। अभी हमने चाय पीना शुरू ही की थी, अम्मी का फ़ोन आ गया कि भाई को जल्दी घर भेजो, तुम्हारे अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मैंने इमरान से कहा कि हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे भी अब्बू की तबीयत का बताना। जब इमरान घर से निकल रहा था उसी वक्त लाइट चली गई। इमरान बाइक लेकर चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। उसी लम्हे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन? आवाज़ आई, आसम। मैंने दरवाज़ा खोला तो आसम ने आते ही थप्पड़ों की बरसात कर दी और कहने लगे, मेरे आने की इत्तला मिल गई थी जो अपने आशिक को भगा दिया। आसिम ने इमरान को घर से जाते हुए देख लिया था। लाइट ना होने की वजह से अंधेरा था तो इमरान ने हेलमेट भी पहना हुआ था। मैंने कहा, वो मेरा भाई इमरान था। आसम ने मुझे जोर से धक्का दिया और कहा, अब आशिक को भाई बना लिया। मेरा सर जाकर टेबल से टकराया और मैं नीचे गिर गई और मेरे सर से खून बहने लगा और वो बेहिस इंसान कहने लगा, तुम ऐसे ही मरोगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। इतने में मेरे सास ससुर भी आ गए। आसम भी कमरे से बाहर आ गए और कहने लगे, अभी मरी नहीं, जिंदा है। इतने में मेरे भाई का फ़ोन आ गया। वो अब्बू की तबीयत का बताना चाहता था। मेरी सास ने फ़ोन उठाया और भाई से कहा कि बेटा जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आओ। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे अम्मी अब्बू सास ससुर सब मेरे पास खड़े थे और डॉक्टर अब्बू से कह रहा था कि खून बहुत बह चुका था, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उनकी मौत हो सकती थी।
फिर अम्मी अब्बू ने आसम को तलाक का कहा। उसने तलाक देने से इनकार कर दिया। मैंने कोर्ट के ज़रिए खुला ले ली। मुझे खुला लिए 2 साल हो गए थे। फिर एक दिन भाई ने अब्बू को बताया कि मेरे दोस्त का बड़ा भाई है, उसकी बीवी की एक हादसे में पिछले साल मौत हो गई थी। वो अपने भाई की शादी करना चाहता है। उन्होंने हमारी खिजरा का रिश्ता मांगा है। भाई ने कहा, मैं इन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ, वो बहुत नेक और शरीफ लोग हैं। खिजरा वहाँ बहुत खुश रहेगी। मैं इन्हें क्या जवाब दूँ, लेकिन मैंने शादी से इनकार कर दिया। अम्मी अब्बू और भाई ने मुझे बहुत समझाया और मजबूर किया, फिर मैंने हाँ कर दी। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। उस्मान बहुत ही अच्छे शौहर हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।